मी काय ते करून तुला खायला. All right, good morning everyone. Yeah, hi Chitraksh, hi Harsh, good morning. तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की टेस्ट की? All good? चलो बढ़िया है. Right, so I hope ideal आप लोगों को मेरा मैसेज मिला होगा कल का. Rather than doing a doubt discussion today, we would want to, go ahead and discuss the upcoming topics in this chapter. फिर जब एक बार सिग्निफिकेंट इसमें भी आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी तो मैं इसका होमवर्क आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो आप ट्राई करना सो दैट वी कैन डिस्कस दैट इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस. ठीक है, सो एक बार क्विक रिकैप दोगे मुझे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, क्या पढ़ा था? करेक्ट, हम लोगों ने ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, राइट? एंड in that the most important thing that we took care was of visualization of orbitals. We tried to understand that around the nucleus there are many such regions in which electron is likely to be found. However, these regions differ from each other in terms of their shape, size, directional orientation, and some of the important ones we took a note, right? They are s orbitals, p orbitals, and d orbitals. ठीक है. Now, given that understanding, let's continue with more results of the quantum mechanical model of atom. हाँ, कुछ डाउट है इसमें, बताओ आर्यन. If the orbital is a boundary around the nucleus, so the electron can be found anywhere on the area, or is there some pattern? It is inside that boundary. जो region जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, that the probability is more than 90%, right? So it is inside that boundary surface diagram. उसमें collectively इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 90%. ठीक है, ऑलराइट. नाउ नोटिस करना, so looking at some more results, ठीक है, from the same quantum mechanical model only. यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना, we will be today looking at this result called as the nomenclature associated with orbitals. We will study a topic called as quantum numbers. ठीक है, QNOS stands for quantum numbers. Now, जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था दैट हम लोग ये जो नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है, इसमें वी डोंट रियली focus much, we don't really get into the derivation, we don't really get into how things got mathematically derived and described. हम सिर्फ रिजल्ट्स पे फोकस कर रहे हैं. In fact, this is different from how we did things in Bohr's model of atom. Bohr's model of atom में कैसा था? We actually went ahead and did certain derivations based on which we got certain results.
यहाँ पर हम लोग सीधे रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, डेरिवेशंस का डिस्कशन नहीं करेंगे. सो इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने जैसे बोर्स ऑर्बिट में, एज इन बोर्स मॉडल में ऑर्बिट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंड ऑर्बिट्स के विजुअलाइजेशन के बारे में समझा था, दैट दीज आर लाइक सर्कुलर paths around the nucleus, and we in fact also talked about their nomenclature. What was their nomenclature? Simply n equal to 1 2 3, या फिर अगर आप ऐसे बोलो तो k shell, l shell, m shell, राइट, इस तरीके का nomenclature था. राइट. तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी ऑर्बिटल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. ऑर्बिटल्स के विजुअलाइजेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाए. ठीक है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं एंड what are their visualization. ठीक है, there are many orbitals as such, and now I am going to help you give names to those orbitals. ठीक है, a unique name for a unique orbital, so that in future when we are referring to these orbitals our discussion becomes much easier. And in order to do that I will be using help of certain numbers called as quantum numbers. ठीक है. Now before I start doing that exercise, there is something that you should know. ठीक है, there is something which is there in this first paragraph. एक बार पढ़ो and then like tell me that कुछ समझ में नहीं आया. पढ़ा सबने? हाँ, एक मिनट, आई थिंक मैंने, ओके. किसी को कुछ समझ में आया? ठीक है, नॉट रियली, बट स्टिल इसमें से क्या क्या चीजें समझनी है वो आप एक बार ध्यान से सुनना, देखना, समझना. जैसा मैंने आपको अभी बोला, ऑर्बिटल्स को नाम देने के लिए क्वांटम नंबर्स यूज करेंगे हम लोग. दिस इज एक्चुअली not the correct way. This is not the actual way in which quantum numbers are understood. ऐसा नहीं होता कि पहले ऑर्बिटल्स आए एंड फिर उनको समझने के लिए, उनका नाम देने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर्स डिफाइन करते हैं. ये तो एक समझाने का तरीका हो गया, बिकॉज इट इज एक्चुअली एन ईजियर वे. द रियल सिचुएशन इज कि ये एरो जो है ये उल्टा होता है. जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सॉल्व करा जाता है, डिस्कस करा जाता है, देन ये क्वांटम नंबर्स पहले आते हैं. ठीक है, दे आर समथिंग विच कम एज एन आउटकम ऑफ सॉल्विंग द मैथ, एंड these quantum numbers help in actually finding out these regions where the probability of finding the electron is high. That is actually the correct way in which quantum numbers are to be understood.
बट प्रॉब्लम ये है कि व्हेन आई स्टार्ट talking about that, then a paragraph something like this comes, that quantize energy states and corresponding wave functions which are solution of Schrodinger equation. ठीक है, सो आप एक बार के लिए सबको बस ऐसे बोल सकते हो सॉल्विंग मैथ्स. ठीक है, जो भी इसके पीछे की मैथ्स थी, सॉल्विंग मैथ्स, वी गेट 3 क्वांटम नंबर्स. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि वो मैथ्स ना तो हमको आती है, ना हम उसमें इंटरेस्टेड हैं उसकी डिटेल में जाने में. And based on these 3 quantum numbers, ठीक है, orbitals come out. These quantum numbers, they describe orbitals, they describe characteristics orbitals, and also help in giving them a name, giving a nomenclature. ठीक है, अब लेकिन मैंने आपको यहाँ पर अभी कैसे बताया इजी रखने के लिए चीज़ों को. आई सेड कि ये जो मैथ्स वाला पार्ट है, ये जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, उसको भूल जाओ. ठीक है, कि ये क्वांटम नंबर्स कहाँ से आते हैं. वी जस्ट से दैट देयर आर दीज क्वांटम नंबर्स. ठीक है, एंड स्पेशली फोकस ऑन द काउंट दैट देयर आर 3 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक. ठीक है, एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, विच आर गोइंग टू बी द key numbers that are going to help us give names to orbitals and describe some important characteristics of them. ठीक है, having said this, एक quick note भी रहेगा आपके साथ में. There is a 4th quantum number as well. However, that 4th quantum number is not actually a solution of this maths. It's not a solution of the Schrodinger equation. It was something which was discovered much later, and it is not for an orbital. It does not describe an orbital. Rather, it describes an electron inside an orbital. ठीक है, तो उसका डिस्कशन हम थोड़े टाइम बाद करेंगे. अभी के लिए विल फोकस ऑन दीज 3 क्वांटम नंबर्स, एक एक करके. प्रिंसिपल, ठीक है, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन समझ में आया क्वांटम नंबर्स का. The easier introduction is that after understanding about orbitals, we are trying to give them names using these quantum numbers. That is the easier understanding. Okay. Otherwise, in reality, the quantum numbers actually are something that come first upon doing the math, and they then help us calculate or find the probability of finding the electron, and then come up with these regions called orbitals. So let's look at the first quantum number, that is called as the principal quantum number. It is represented by this symbol called small n. हाँ, कुछ डाउट है नैन आपको? No, I just wanted to ask, we don't need to know the meaning of wave functions and all of that, right? अभी के लिए नहीं. ठीक है, right now I am trying to steer away from all this. ठीक है, because that is where the problem happens, is that यहाँ से आपको डर लगना शुरू हो जाता है. ठीक है, अगर आप you know, if you will notice the booklet, किसी ने बुकलेट की थ्योरी वाली सेक्शन देखी है? प्रॉब्लम्स तो आप लोग सॉल्व कर रहे हो बुकलेट से, बट हैव यू कम अक्रॉस द थ्योरी वाला सेक्शन? यस सर. ठीक है, मैं एक बार आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. ठीक है, तो दिस इज वेयर द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट्स. ठीक है, अगर आपने बुकलेट से पढ़ना शुरू कर दिया तो आप डर जाओगे. ठीक है, यहाँ तक पिक्चर सब अच्छी चल रही थी,
ठीक है, like you started off with very like basics. You started off with earlier experiments, ठीक है, then Thomson model, Rutherford model, Bohr's model, right, quantum theory, ये सब आपका अच्छा खासा चल रहा था, ठीक है। मैंने तो बीच में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा दिया बुकलेट में, ऑल्दो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाद में दिया हुआ है, बट इट वाज इंपॉर्टेंट टू बी टॉट अर्लियर बिकॉज दैट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बट ये सब करने के बाद में, ठीक है, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ने के बाद में, व्हेन यू कम टू दिस टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, देन दिस इज एक्चुअली द स्टार्ट. If I actually start from this, that what was the math and how that math is to be understood, आप सब like जे की पढ़ाई छोड़ दोगे. You will be like कि सर हमको रिफंड चाहिए, ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हम लोग नहीं करेंगे, this is too much. ठीक है, so this is something which I don't want to do. So I will be completely steering away from this maths, not using any of these terms to start with. ठीक है, इनफैक्ट जो लॉजिकल ऑर्डर है, लॉजिकल इन द सेंस जो प्रॉपर मैथमेटिकल ऑर्डर है, वो इसी तरीके से इक्वेशन लिखी जाती है, इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है, उससे क्वांटम नंबर्स आते हैं और उन क्वांटम नंबर्स की मदद से ऑर्बिटल्स पता पड़ते हैं. दैट इज एक्चुअली द ट्रू मैथमेटिकल वे इन विच थिंग्स हैपन. बट आई एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. I was, and I am going to help you understand things which are important, which are easier first. ठीक है, something which helps you solve questions. ठीक है, मैं ये easier part आपको करा के वो confidence लेके आऊँगा. ठीक है, when you will be solving questions, and when you are comfortable with that, ठीक है, आपसे questions वगैरह हो जाएंगे, अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, then I will come back and talk about the maths, and that too in a very very simplified manner, nothing something which becomes too much for you to handle. ठीक है, so that will be our approach. ठीक है, so यहाँ पर at times you will be asking me questions कि सर like इसके पीछे का derivation क्या है. The answer is that we are not getting into that derivation right now. ठीक है, अभी क्लियर है? Yes, sir. Thank you. So let's look at this concept of quantum numbers, and for now we don't want to get into the details of this highlighted line. ठीक है, I would want to mention it, not skip it, but I would want to start from the fact that there are 3 quantum numbers, and these quantum numbers describe the characteristics of orbitals and also help us giving them a name. Now एक एक करके quantum numbers के बारे में पढ़ते हैं without getting into their derivation. The first quantum number is called as the principal quantum number, represented by this symbol n. It describes the size or energy associated with orbital. Its allowed values are integers starting from 1. कहाँ से आया ये? इसके पीछे की मैथ्स है. Need not go there, just need to remember this information that there is this quantum number जिसकी allowed values are going to be 1, 2, 3 and so on so forth. They will start from 1 and they will be the natural numbers going forward, right? Greater the value of n, ठीक है, किसी ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर बड़ा वैल्यू रहेगा, ठीक है, तो उस ऑर्बिटल का साइज, उस ऑर्बिटल के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो भी ज्यादा रहेगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप s ऑर्बिटल्स के बारे में बात करोगे, यू रिमेंबर s ऑर्बिटल्स फ्रॉम लास्ट क्लास? Yes, sir. They were spherically shaped orbitals. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही spherical shaped region होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस रहेगा. ठीक है, there are many such regions and in fact multiple spherical shaped regions होंगे. तो एक रहेगा ये वाला जिसका principal quantum number 1 रहेगा. ठीक है, so that will be actually a
smaller region with a lesser energy level associated with it. You can have a larger spherical region in which electron can be likely to be found. Okay, and this will be associated with a higher energy level, higher size, greater energy level. Okay, and so on so forth. ठीक है, एक और बुलेट पॉइंट यहाँ पे नोटिस करना, विच इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस लेटर. अभी नोट्स के लिए बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एनर्जी शेल. ठीक है, व्हाई इज इट कॉल्ड एनर्जी शेल? इसका यूज काफ़ी जगह रहेगा, बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ी देर बाद करता हूँ. ठीक है, जब हम लोग एनर्जी रिलेटेड विद ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे. ये पहला क्वांटम नंबर समझ में आया आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? Yes, sir. All right. Then there is another quantum number that is called as angular or azimuthal quantum number. Okay, this is represented by the symbol L. ठीक है, नहीं आर्यन, ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी की वैल्यू डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, आप यहाँ पे इंग्लिश पढ़ो ना अच्छे से. Am I saying that principal quantum number is the energy or is the energy level? Am I saying that? नहीं ना. What I'm saying is that principal quantum number describes the energy associated with orbital. तो एक रिलेशनशिप रहेगा, एंड वो रिलेशनशिप मैंने आपको कैसे बताया कि n की वैल्यू ज़्यादा रहेंगी तो एनर्जी लेवल्स ज़्यादा रहेंगे. दैट्स इट. ठीक है, हाँ. इसके पहले जो n का सिंबल था वो हम लोग बोर्ड्स मॉडल में एज ऑर्बिट नंबर यूज कर रहे थे. ठीक है, अब थोड़ा सा हमें और अपना स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना पड़ेगा. लाइक नाउ जब मैं n का डिस्कशन आपके साथ में करूंगा इन सर्टेन टॉपिक्स, इन सर्टेन क्वेश्चंस, सो दैट विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, ऑलराइट. सेकंड क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग बात करें, दैट इज द एंगुलर और द एजिमुथल क्वांटम नंबर. ठीक है, ये एंगुलर और एजिमुथल क्वांटम नंबर पे फोकस करना. अब नोटिस करना, दिस क्वांटम नंबर describes the shape of an orbital. Now notice करना, याद रखना, its allowed values, they depend upon n and are integers from 0 to n-1. ऐसा क्यों है? वो इसके पीछे की मैथ्स है, आपको अभी के लिए रिजल्ट याद रखना है. दैट there is the second quantum number called as the azimuthal quantum number which describes the shape of an orbital. It describes, Sir, yeah, n is the principal quantum number. हाँ, इसकी जो वैल्यू है that depends upon the principal quantum number n, and जो allowed values रहती हैं इसकी, they are what? They are integers. ठीक है, फ्रॉम 0 to n-1. तो मान लो अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू कितना रहेगा? 0. ठीक है, अगर n का वैल्यू 2 है तो l का अलाउड वैल्यूज क्या रहेगा? 1. 1. 0 to 1. राइट, समझ में आया? But Flo, like if principal quantum number is 0, then it will be -1, or it won't be because 0 is the number. कैसा लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए? Oh, yes, sir. Got it. ठीक है, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ओनली.
अच्छा, अब नोटिस करना और याद रखना, ठीक है, दिस इज समथिंग अगेन फॉर यू टू रिमेंबर, हाउ द शेप एंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर आर रिलेटेड. तो अगर L का वैल्यू 0 रहेगा, दैट मीन्स ऑर्बिटल का शेप जो है वो स्फेरिकल होगा, इट विल बी एन एस ऑर्बिटल. अगर L का वैल्यू 1 रहेगा तो इट विल बी अ डम्बल शेप ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल रहेगा. L का वैल्यू अगर 2 रहेगा तो इट विल बी अ डबल डम्बल शेप ऑर्बिटल. ठीक है, L का वैल्यू 3 रहेगा and so on so forth, you get the shape and the name associated with that orbital. ठीक है, S टाइप S ऑर्बिटल रहेगा, P रहेगा, D रहेगा, F रहेगा, राइट. तो आपको ये Sure. लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट दोनों याद रखना. But I've done this no, but before. नहीं तुम भाई, एक मिनट, जेनिथ 7th में वाला बैच बैठा है यहाँ पे. आप लोग जेनिथ 1 के स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे बैठ के आ गए हो तो आई थिंक यू आर इन द रॉन्ग क्लास. Oh, so the link in the group was this one. लिंक हमेशा सेम ही रहेगा मेरा, लिंक कभी चेंज ही नहीं होता. Oh, I think in the doubts lecture they sent the wrong link. Sorry. ठीक है, ऑल राइट. नाउ कमिंग बैक, ये टेबल जो है आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों याद रहनी चाहिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल S P D F, F के आगे G, तो G का L का वैल्यू क्या होगा. इसी फ्लो में चलते जाएंगे तो G का L का वैल्यू 4 होगा. ठीक है, लेट्स से इफ आई आस्क यू K, अगर किसी ऑर्बिटल का मैं सिंबल यूज कर रहा हूं K, तो उसका L वैल्यू क्या होगा. एंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चले जाना F के बाद में. Sir, 8. राइट, तो F के लिए 3 है, G के लिए 4 है, H के लिए 5 होगा, I के लिए 6 होगा, J के लिए 7 और K के लिए 8. हाँ ठीक है, मेक सेंस, समझ में आया. You might not know how the shape is because I have not really bothered to like draw it and describe it. We need to focus on the shapes of the first 3 only, spherical, dumbbell, double dumbbell. वो आपको याद रहने चाहिए, बट एटलीस्ट ये नाम और उनकी मैपिंग विद द सेकेंड क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये आपको जरूर समझ में आनी चाहिए. ठीक है, ये समझ में आया. इज दिस क्लियर. ओके, नाउ Sir, हाँ बोलो बोलो. so if n is equal to 3, L can be 0, 1, 2. So it'll have all the 3 shapes. हाँ हाँ, वो मैं आगे आपको टेबल फिल करवाता हूँ अभी थोड़ी सी देर में. Okay, thank you. ठीक है, एंड दिस क्वांटम नंबर, ठीक है, जो ये सेकंड क्वांटम नंबर है एजिमुथल क्वांटम नंबर, दिस इज आल्सो रेफर्ड टू एज एनर्जी सबशेल. ठीक है, व्हाई इज इट रेफर्ड टू एज एनर्जी सबशेल, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा बट थोड़े टाइम में. ठीक है, ऑलराइट. नाउ अब नोटिस करना,
third quantum number, which is the magnetic quantum number. ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे यूज करा जाता है, कैसे डिस्क्राइब करा जाता है? ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर describes the directional orientation of an orbital. What do I mean by that? नोटिस करना, जो इसकी अलाउड वैल्यूज होंगी, थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऐसे m सबस्क्रिप्ट l, ठीक है, m सबस्क्रिप्ट l से डिनोट करते हैं इसको, दे आर integers from -l to +l. ठीक है, their values, allowed values will depend upon l, the second quantum number, the azimuthal quantum numbers, and are integers from -l to +l, including 0. So let's say if l is equal to 4, then ml की allowed values will be -4 से +4, integers including 0. ठीक है, तो अब इस अंडरस्टैंडिंग के बाद में समझना that a unique set of the three quantum numbers n, l and ml, they are going to help describe a unique orbital for you. So this will help you understand that how how orbitals are present around the nucleus. What are these different orbitals? What are their shapes and directional orientations? ठीक है, थ्रू दिस टेबल. सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले n से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फर्स्ट क्वांटम नंबर. बेस्ड ऑन दैट n you get allowed values of l, and based on the allowed values of l you get the values of ml, and a unique set of these three is going to give you the name of an orbital. It is going to describe a unique orbital for you. ठीक है, so एक एक करके शुरू करते हैं, and let me rub this so that I can do this exercise with you. ठीक है, just give me 1 minute. ये प्री रिटन फॉर्म में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा if I write it along as we are going. ठीक है, just a moment. All right. So यहाँ पर अब नोटिस करना, for n equal to 1, that will be our starting value. What is the allowed value of l that is going to be? 0. And उसके लिए जो allowed value of ml है वो क्या होगा? 0. So this unique set describes an orbital for you, which is the 1s orbital. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं. n की वैल्यू 2 हो सकती है, उसके लिए अलाउड वैल्यूज ऑफ l क्या क्या है? 0, 1. ठीक है, उसके लिए अलाउड वैल्यूज ऑफ l आर 0 and 1. ठीक है, फॉर l equal to 0, what is the allowed value of ml? -1 to 1. ठीक है, for l equal to 0, the allowed value of ml will be 0 only. So this unique set, ठीक है, n equal to 2, l equal to 0, ml equal to 0 is 2s orbital. ठीक है, मैंने 2 क्यों लिखा? 2 represents the principal quantum number. s क्यों लिखा? क्योंकि s represents the value of l as 0. ठीक है, so around the nucleus you have 1s orbital. ठीक है, then you have 2s orbital, which will be larger in size, greater in energy level as compared to the 1s orbital. ठीक है, then और नोटिस करना,
यहाँ पे आप नोटिस करोगे n इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 1, मतलब कौन से ऑर्बिटल्स हो गए ये? 2p है ना, इसको मैं इसी तरीके से लिखूंगा ना, n इक्वल टू 2 एंड l इक्वल टू 1। l इक्वल टू 1 मतलब क्या होता है? p ऑर्बिटल, डम्बल शेप, राइट? नाउ for l equal to 1, what are the allowed values of ml? -1, 0, 1. -1, 0 and +1, राइट? ये अपन ने ऊपर पढ़ा ना, -l से +l, ठीक है? ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शनल ओरिएंटेशन, ठीक है? 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? इट वाज रिप्रेजेंटिंग द साइज और द एनर्जी लेवल एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल। ये सेकंड क्वांटम नंबर क्या डिस्क्राइब कर रहा था? द शेप, right? So for l equal to 1, what is the shape? It is a dumbbell shape. It's a p orbital, ठीक है? And the third quantum number describes the directional orientation, ठीक है? So यहाँ पर the orientation is 3 categories, 3 types. एक आपने पढ़ा था 2px, एक 2py, एक 2pz, याद है कि नहीं याद है? Yes, sir. Now as such, which one, like ये आर्बिट्रेरी रहता है, ठीक है? मैं किसी को भी 2px, किसी को भी 2py, किसी को भी 2pz लिख सकता हूँ। अगर इसको x लिख दिया, इसको y लिख दिया, तो ये z हो जाएगा, ठीक है? दैट इज द that is not a constraint, that is not a compulsion. However, in order to have a uniform discussion across different books, ठीक है, एक sort of convention adopt कर लिया है। z axis को preferential treatment मिलता है, z axis is considered special। तो ये जो ml equal to 0 है, ठीक है, ये हम लोग 2pz को असाइन करेंगे। दैट इज अ कन्वेंशन दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। इट इज समथिंग विच इज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर किसी टेक्स्ट बुक में 0 को x लिख दिया तो फिर उस बुक को मैं फाड़ के फेंक दूंगा कि नहीं ये क्या है, तो पाप हो गया। ऐसा नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ओके, बट बिकॉज फ्यूचर में हम लोग काफ़ी जगह काफ़ी बार इन क्वांटम नंबर्स को, इन ऑर्बिटल्स को यूज़ करने वाले हैं, तो टू बी ऑन द सेम पेज, ठीक है, एवरी टाइम नॉट ट्राइंग टू अब हम यहाँ पर कैसा देख रहे हैं? जीरो को पी जेड को असाइन कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, having said this, having seen this, अब आप नोटिस करना, व्हाट अबाउट 2px एंड 2py? उसमें आप अभी भी आर्बिट्ररी हो सकते हो। देयर इज नो कंपल्शन, देयर इज नो लाइक प्रॉब्लम। यू कैन चूज टू राइट -1 को आप x लिख दो, +1 को y लिख दो, या उल्टा कर दो, फर्क नहीं पड़ेगा, इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है? दैट इज समथिंग विच यू कैन यूज इंटरचेंजेबली, ठीक है? तो मैं इसको y लिख दूं और इसको x लिख दूं या ऑपोजिट लिख दूं, फर्क नहीं पड़ेगा, बट 0 को जरूर z लिखना, ठीक है? यहां तक का पार्ट समझ में आ रहा है? अच्छा, n equal to 3 के लिए what are the allowed values of L that are going to be? 0, 1, 2.
0, 1 and 2, right? For L equal to 0, what is the allowed value of ML? 0. Right, so that is your 3s. ठीक है, यहां पर आप नोटिस करना फॉर n equal to 3, L equal to 1, you have 3 orbitals. कौन से? You have 3p orbitals. ठीक है, 0 आप किसको असाइन करोगे? z को, बाकी +1 -1 जो आपकी इच्छा है आप असाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देन n equal to 3 and L equal to 2, मतलब कौन से ऑर्बिटल्स रहेंगे ये? 3D. 3D, राइट। एंड ये 5 क्यों लिखे हैं मैंने? बिकॉज फॉर L equal to 2 the allowed values of ML are going to be these 5, representing the 5 directional orientations. ठीक है, याद है अपन ने लास्ट क्लास में 5 d ऑर्बिटल्स ड्रॉ करे थे। नाउ एनी गेस, 0 हम लोग किसको असाइन करना चाहेंगे? Z square. Z square. ठीक है, हम लोग z स्क्वायर को असाइन करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज देयर इज अ स्पेशल प्रेफरेंस गिवन टू द z एक्सिस। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे नोटिस करना, तो जो ये -1 +1 है उसमें भी z होना चाहिए। ठीक है, सो यू कैन चूज टू राइट xz और माइनस और yz। ठीक है, इसको आप जैसे yz बोल दो, इसको आप xz बोल दो, बट z जरूर होना चाहिए। ठीक है, +1 -1 में। ठीक है, x एंड y का ठीक है चेंज कर सकते हो। व्हाट अबाउट -2 +2? ठीक है, सो XY and x square minus y square. एक xy रहेगा और एक x² - y² रहेगा। ठीक है, आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. नाउ नोटिस करना, ये जो 3d के इलेक्ट्रॉन्स है इनको कलेक्टिवली कहा जाता है, सॉरी 3d के ऑर्बिटल्स है इनको कलेक्टिवली कहा जाता है 3d सबशेल। ये जो 3p के ऑर्बिटल्स हैं इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? 3p सबशेल। ठीक है, ये जो 3s 3p 3d इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज थर्ड शेल। ठीक है, तो ये शेल सबशेल ऑर्बिटल वाला लेवल समझ में आ रहा है? हाँ सर। So sir, s orbital is not included. s will be s subshell. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज s subshell। अब s subshell में एक ही ऑर्बिटल है। Yes sir, I meant in the third shell. नहीं, इट इज इंक्लूडेड ना। Okay. ये एरो यहाँ तक जा नहीं रहा क्या? मतलब लेट मी काइंड ऑफ ऐसे, अभी ठीक है? Yes. All right. So with the help of these quantum numbers, do you now have a better understanding about orbitals? Like, do you now understand more about what are the possible orbitals that are going to be present around the nucleus? And ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गाड़ी रुक जाएगी, आप आगे भी जा सकते हो। You can go into the fourth shell. उसमें कैसा रहेगा? 4s 4p 4d and 4f भी आ जाएगा। ठीक है, l की वैल्यू 3 भी अलाउड होगी। ठीक है, अब मैं जा नहीं रहा हूँ, मतलब अदरवाइज वो टू लॉन्गर टेबल बन जाएगी।
एंड वैसे भी हमें एफ ऑर्बिटल्स की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं होती है, बट इतना हमें समझ में आना चाहिए। ये क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन? इज एवरीवन कंफर्टेबल टिल नाउ? So what does NLML stand for? वो Near लिखने orbital. का तरीका हो गया ना, ये लिखने का तरीका हो गया। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ यू नोटिस ये 3py, तो ये 3 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n। N. जो ये p है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? l, राइट? l इक्वल टू 1, ठीक है। और ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है y, वो कहाँ से आता है? वो थर्ड क्वांटम Orientation. नंबर Yeah. ml से आता है, Hmm. ठीक है। Got it. Thank you. Okay, now based on this, okay, there are some like pattern based questions which I think you would be able to answer. So if I ask you for a given shell, okay, for a given principal quantum number, there are how many orbitals for a given shell? N square. राइट। सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा दैट अगर मैं लेट्स से फर्स्ट शेल के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसमें एक ही ऑर्बिटल है, सेकेंड शेल में 4 है, थर्ड शेल में आप नोटिस करोगे तो कितने दिख रहे हैं? 1 + 3 + 5, 9 दिख रहे हैं। तो एक पैटर्न फिगर आउट हो रहा है that for a given shell there are n square orbitals, है कि नहीं? Are you able to figure out this pattern? Yes, sir. Great. अच्छा, अब नोटिस करना for a given sub shell, ठीक है, can you tell me how many orbitals are there for a given sub shell? Two N plus one. 2n + 1 या 2l + 1? Two L plus one. राइट। सो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ रही है दैट you can figure out that pattern for s सबशेल एक ऑर्बिटल है, for p सबशेल 3 है, d में 5 रहते हैं, राइट। f में कितने होते हैं? 7 होते हैं ना, Yes, sir. राइट। so you can figure out a pattern over here that for a given subshell there would be how many? 2l + 1 orbitals, ठीक है। now having said that, ठीक है, ये आपको अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं दैट l = 4 यानी कि g सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, तो अब आप आंसर कर सकते हो? है कि नहीं?
ठीक है. नाउ अब नोटिस करना, ठीक है. लेट मी आस्क यू some questions. Give me 1 minute, I'll just remove the answers. ठीक है. Just to help understand कि आप लोगों को ये बेसिक्स ऑफ क्वांटम नंबर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. ठीक है. हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो. 2l + 1 कैसे मिला, आप नोटिस करो ना पैटर्न. l = 0 में एक s ऑर्बिटल है, l = 1 में 3 है, l = 2 में 5 है, राइट. और the other way is actually for allowed for a given l, -l से +l की वैल्यूज होती है ना. Yes, sir. ठीक है. तो if you do that counting, you will come up with like 2l + 1 values including 0. राइट. सो क्या आ रहा है आपका आंसर? Correct. C option is the answer which should not exist. How did we come up with that? We looked at the allowed values, right? So for n = 7, is s orbital allowed? Like l की value 0 is allowed? Yes, it is allowed. For n = 3, is l की value 2? क्योंकि d मतलब l = 2. Is that allowed? Yes, l can be 0, 1, 2. For third shell, like n = 3, l का value 3 नहीं हो सकता ना. Like for f मतलब l का value 3 हो गया. That is not allowed for n = 3. Right? 5d चलेगा. n की value 5 के लिए allowed values of l can be from 0, 1, 2, 3, 4. तो l = 2 allowed है. समझ में आया ये? Are you able to understand this? Yes, sir. ठीक है. Now इस वाले क्वेश्चन को आंसर करके बताओ.
हाँ, so इसमें which of the one is not allowed? Again, काफी क्लियर है, ए ऑप्शन आंसर रहेगा. क्यों? बिकॉज एल की वैल्यू 1 के लिए एम का वैल्यू +2 रहना चाहिए, एज इन +2 अलाउड नहीं होगा. सर इधर m का वैल्यू तो सिर्फ इधर जो l दिया है उसके लिए फाइंड करना है ना? हाँ, मतलब आपसे ये पूछा है ना कि कौन सा सेट अलाउड नहीं है. n नहीं के तो लिए n की इक्वल टू 3 के लिए क्या l का वैल्यू 1 हो सकता है? हाँ क्या l का वैल्यू 1 के लिए m का वैल्यू +2 हो सकता है? नहीं, ये गड़बड़ हो गया ना. बाकी केस में सब में लाइक प्रॉब्लम नहीं आएगी. मतलब ऐसा नहीं है ना, क्या l का वैल्यू इधर 2 भी आ सकता है, इसके लिए m का वैल्यू 2 आएगा, ऐसा नहीं करने का है ना? नहीं, आपको फर्स्ट क्वांटम नंबर से सेकंड से थर्ड पे जाना है, उल्टा नहीं जाना. ओके सर. ठीक है, एक और अटेम्प्ट ले लो. करेक्ट. इसमें सी ऑप्शन विल बी नॉट अलाउड. व्हाई? बिकॉज n इक्वल टू 4 के लिए l का वैल्यू 4 अलाउड नहीं है. n इक्वल टू 4 के लिए l का वैल्यू 0 1 2 3 तक ही जा सकता है ना, n-1 तक. ठीक है, आपको आइडिया लग रहा है क्वांटम नंबर्स की अलाउड वैल्यूज कैसे डील करनी होती है? Yes, sir. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आंसर करो विच इज बेस्ड ऑन द diagram of orbitals. If you don't remember the diagram, then like go ahead and look into the diagrams जो हमने last class में discuss किए थे. हाँ, right खुश, right हर्ष, right नैन. Along the axis बोला है, not between the axis. ठीक है, हाँ, right गर्मा, right दुर्गेश. Correct. D option will be the answer. You need to remember the diagrams, right? जो pz है वो along the z axis रहेगा, and जो d x² - y² था that is along the x axis and y axis. बाकी जो ये रहते हैं dxy या dyz, ये सब कैसे रहते हैं? They are between the axis, they are not along the axis. याद है डायग्राम्स? ठीक है,
Are these clear? Sir, in P, all are along the axis only, right? हाँ. Okay, thank you. P all are along the axis. ठीक है. अच्छा, अभी let's look at the next result, which is the relative order of energy associated with orbitals. ठीक है. In fact, just give me one moment. मैं इसको उठा के उधर ही रख लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए easy रहे. ये इतना पार्ट और हम कंप्लीट कर सकते हैं आज. ठीक है. सो अभी तक हमने दो रिजल्ट्स समझ लिए हैं. ठीक है. व्हाट वर दोस टू रिजल्ट्स? एक विजुअलाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कर पा रहे हैं उनकी मदद से. नेक्स्ट रिजल्ट के ऊपर मैं जाता हूं, विच इज relative energy of relative order of energy of orbitals. ठीक है. तो यहाँ पर नोटिस करना, बोर्स मॉडल में तो एक्चुअल कैलकुलेशंस हम लोग कर पाए थे, राइट? यू रिमेंबर -13.6 z²/n². ठीक है. यहाँ पर हम लोग एक्चुअल कैलकुलेशंस की डिटेल में नहीं जा पाएंगे. ठीक है. विल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज. उतना मैथ्स, उतना डिटेल्स हमको अभी आता नहीं है. But we'll still be interested in the energy associated with orbitals, and what we will try to do is figure out the order. ठीक है. Try and understand the pattern, try and understand कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी कम, कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है. ठीक है. एक आइडिया तो खैर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से लगी गया है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें यही बताया था कि अगर ग्रेटर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो ग्रेटर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल, राइट? ये पढ़ा था ना. Greater the value of n, greater will be the size or the energy associated with the orbital. ठीक है. बट थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे इसको. कैसे? यहाँ पर नोटिस करना. Let me talk about the relative energy of orbitals. Now, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो वैसे ही चलेगा जैसा आपने इमेजिन करा. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से हमारा आंसर रहेगा. ठीक है. यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप नोटिस करोगे energy of orbital depends only on n. ठीक है. So if I was to ask you the relative order of energy of orbital, तो आप बोलोगे कि 1s will be lower as compared to 2s, and 2s 2p बराबर होंगे. क्यों? Because they have the same value of n. Then they will be lesser than 3s or third shell orbitals. 3s, 3p, 3d will be same because they are all belonging to the third shell. They have the same principal quantum number, that is n, and so on and so forth. ठीक है. So ये relative order of energy of ऑर्बिटल्स रहेगा इन द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. ठीक है. मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देयर इज अ स्लाइट कैच. ठीक है. देयर इज समथिंग डिफरेंट. कैसा है यहाँ पे आप नोटिस करना. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो देयर इज जस्ट इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस इज स्टेशनरी एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट और मूविंग अराउंड इट. And based on those calculations, we understand that energy depends only on the principal quantum number. But in case of multi-electron system, complexity aa jati hai. Why? Because there is interaction not just between the nucleus and the electron, but also between electron. Okay, that also plays a role. And in order to take that into account, in order to do the math for it, it is quite complicated, which we don't really get into the details of. All we take as a result, take as an outcome is that अब मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के अंदर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन n but also l. It depends on the principal as well as the secondary quantum number. ठीक है. अभी कैसे डिपेंड करता है
उसको हम लोग कहते हैं n+l रूल। ठीक है, सो नोटिस करना ये n+l रूल कैसा होता है, क्या होता है। सो दिस n+l रूल सेज greater the value of n+l of an orbital, greater is its energy। और अगर दो ऑर्बिटल का सेम n+l वैल्यू है तो देन जिसका n का वैल्यू ज्यादा है दैट विल बी ऑफ ग्रेटर एनर्जी। कैसे आया, कहां से आया, डोंट गेट इनटू द डेरिवेशन, जस्ट फोकस ऑन द रिजल्ट। दैट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम relative order of energy of orbitals is described by this rule called as n+l rule। ठीक है, so if I ask you to apply it and compare the relative order of energy of orbitals, ठीक है, मैं एक बार के लिए रब कर देता हूँ। ठीक है, if I was to ask you to apply this, ठीक है, just give me one moment। तो ये कैसा रहेगा यहाँ पे बताओ मुझे। 1s के लिए n का वैल्यू कितना है, 1, l का वैल्यू 0 0, तो n+l वैल्यू कितना हो गया 1, 2s के लिए, right? So can you see what is the relative order of energy? 1s and 2s में 2s का ज्यादा होगा। ठीक है, now so in 2s का l, why don't we take 1 also? because l equal to 1 means a 2p orbital ना, Okay, sorry. n equal to 2 and 2p मतलब l equal to 1 रहेगा, तो n+l कितना हो गया 3। so between 2s and 2p, now can you understand that 2p will be of a higher energy। Yes, sir. ठीक है, what about 3s, n का वैल्यू 3 एंड s मतलब l का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 0 0 0। तो n+l कितना हो गया 3। नाउ अब अगर n+l वैल्यू सेम है तो फिर क्या लिखा है पॉइंट, जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, है ना, यही पॉइंट लिखा है ना। Yes, sir. अच्छा, देन 3p के लिए अब आप नोटिस करोगे तो 3s 3p में यू अंडरस्टैंड दैट 3p इज ऑफ अ हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, फिर आप लेट्स से 3p के बाद में 3d के लिए कैलकुलेट करोगे तो 3d के लिए n का वैल्यू कितना आ रहा है 3, 5, l का वैल्यू 2, n+l वैल्यू कम्स आउट टू बी 5, है कि नहीं। देन 3d के बाद में शुड आई राइट 3f, no, sir. 3f इज नॉट अलाउड ना, n की वैल्यू 3 के लिए f यानी कि l का वैल्यू 3 हो ही नहीं सकता, तो अब आई शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, अब नेक्स्ट शेल की तरफ जाएंगे विच इज 4s, राइट। सो व्हाट अबाउट 4s, व्हाट विल बी इट्स n+l वैल्यू 4, राइट। सो यहाँ पर यू कैन से दैट n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 0 है, तो ये तो छोटा वैल्यू आ गया, यानी कि 4s विल बी ऑफ अ लेसर एनर्जी एज कंपेयर टू 3d, है ना, है कि नहीं। yes, sir. व्हाट अबाउट 4p, So 4s will be greater than 3p, but right? 4s will be greater than 3p, yes। ठीक है, so 4s and 4p में 4p will be of a greater energy, right, in fact it will be greater than 3d as well, क्योंकि n+l 5 है बट इसका n वैल्यू ज्यादा है, समझ में आ रहा है, Yes, sir. and so on so forth। ठीक है, so you can keep on doing this to compare the relative order of energy of these orbitals, or you can say subshell। ठीक है, अगर मैं ऑर्बिटल लेवल की बात करूं, राइट, सो उसमें कैसा रहेगा, जैसे अगर 2p के अंदर 2px 2py 2pz 3 ऑर्बिटल रहते हैं, अब उसमें तो कैसा है, दे हैव द सेम n सेम l, तो दे हैव द सेम एनर्जी, दे आर इक्वल एनर्जी।
ठीक है, वैसे ही अगर मैं 3D में जाऊंगा तो 3D के पांचों ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम रहेगा। ठीक है, समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. अगर मुझे इसको थोड़ा और डिटेल्ड बताना है आपको, ठीक है, लेट्स से जस्ट गिव मी 1 मिनट, इफ आई वाज टू लाइक ड्रॉ इट इन अ डिटेल्ड मैनर फॉर यू, तो आप नोटिस करोगे ठीक है, एक मिनट, ये तो मैंने सबशेल के लेवल पे आपको बताया, बट अगर ऑर्बिटल के लेवल की डिटेल आपको समझनी है तो कैन यू सी दीज बॉक्सेस आर रिप्रेजेंटिंग ऑर्बिटल्स. So can you see in single electron system how the energy of orbitals are? First shell, second shell, third shell and so on so forth. And then second shell के जो भी orbitals हैं 2s and 2p के तीन, वो सब same energy के हैं. 3s, 3p, 3d all are of the same energy level and so on so forth. This is single electron system because यहाँ पर energy का order depends only on n. ठीक है. What about the multi-electron system? Multi-electron system में it is n plus l rule, right? So जैसा आपने यहाँ पे नोटिस करा 1s is of lower energy, 2s is of higher, then 2s and 2p में 2p is of higher and 2p के अंदर 2px, 2py, 2pz तीनों का एनर्जी लेवल सेम है. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? Sir, हाँ, so in the single electron system, why don't we connect all of them? It's only to differentiate the different subcells, right? हाँ, हाँ. Okay. Because they are at the same energy level, that's why I thought why couldn't we make them all in just one line? बना सकते, मतलब they are in all one line. It's just that I have separated Yeah, the them spacing, horizontally. sorry. ठीक है, because there is no horizontal axis, like only the vertical axis is what is of importance, the energy. ठीक है, मैंने horizontal कुछ बताया नहीं ना, तो it is Yes. just segregate them and show them properly. ठीक है, ये समझ में आया? Is this clear with everyone? The relative order of energy of orbitals. ठीक है, नाउ अब इसी के साथ में नोटिस करना, ठीक है, एक टर्म इंट्रोड्यूस करी जाती है कॉल्ड एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. ठीक है, व्हाट डज दैट टर्म मीन? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. ठीक है, इस टर्म का ही मीनिंग होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. So if I ask you this question, in hydrogen atom is 3s and 3p orbital degenerate? What will be your answer, yes or no? No. So can you repeat? In hydrogen atom 3s and 3p are degenerate. Yes, sir. So if I look at the diagram of 3s and 3p or energy level of 3 and 3p, I can see that they are at the same energy level. That means they are degenerate. So the answer is yes. Okay. If I ask you the question, in helium atom is 3s and 3p degenerate? No. Right, then your answer becomes no. Why is that so? Because it's multi-electron system. Right, because it is a multi-electron system, so उसमें 3s and 3p are going to be of a different energy level. Right, यहाँ पे 3s और 3p में if I ask to compare, 3s will of lower energy, 3p will be of a higher energy. They are not degenerate. So could you repeat why in a single electron system they are degenerate?
बिकॉज दे हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल ना. 3s का n+l वैल्यू कितना है 3 और 3p का n+l वैल्यू कितना है 4. No, sir. Like in hydrogen atom, why they are degenerate? Because they are of the same energy level. 3s and 3p both belong to the same n value. Yes, sir. Okay, sir. Got it. है ना. अच्छा, if I ask you, like in helium atom, is 2px 2py 2pz degenerate? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Correct. So in multi-electron 2px 2py 2pz, they are going to be of the same energy level, and they are going to be degenerate. ठीक है. ओके, इसी के साथ में एक और टर्म है कॉल्ड एज डीजेनरेसी ऑफ एन एनर्जी लेवल. ठीक है, ये भी एक टर्म है जो कि यूज करी जाती है, इसके बारे में आपको आइडिया रहना चाहिए. इट टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग दैट एनर्जी लेवल. ठीक है, दिस टर्म डीजेनरेसी ये किसके लिए डिफाइन करा जाता है? इट इज डिफाइंड फॉर एन एनर्जी लेवल दैट उस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे नोटिस करना. So let's say if I write this in front of you as a question, what is the degeneracy of the first excited state of hydrogen atom? That means I'm asking that जो first excited state है hydrogen atom की, how many orbitals belong to that energy level? ठीक है, so ये आप कैसे सोचना शुरू करोगे? You will look into the hydrogen atom. Hydrogen atom single electron है, multi electron है? Single. ठीक है, सो आप सिंगल इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स के बारे में बात करना शुरू करोगे तो ये लेफ्ट हैंड वाले डायग्राम पे फोकस करोगे. नाउ इन दिस लेफ्ट हैंड वाला डायग्राम, कैन यू सी द एनर्जी लेवल्स? दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं. रिमेंबर, राइट? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर करस्पॉन्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल? 1. 1. Now what do I mean by first excited state? N equal to 2. ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, ठीक है, जो और ज्यादा जनरल डेफिनेशन होगा रादर देन n equal to 2 विल बी द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल. ठीक है, n equal to 2 भी करेक्ट है आपका सोचना, बट इफ आई लाइक talk about an even more fundamental definition of what would first excited state mean. ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट का फंडामेंटल डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? लोएस्ट एनर्जी स्टेट. Excited state will be higher energy states. First excited state will be the next higher energy state. है कि नहीं? So this is your second energy level. ठीक है? This is your first excited state. Now corresponding to this, can you tell me how many orbitals are there? 3. 4. ठीक है, मतलब 3 वाला तो आई थिंक आपको चश्मे का नंबर चेंज करा लेना चाहिए. Can you see that there are 4 orbitals corresponding to this energy level? So if I ask you the question, what will be the degeneracy of the first excited state of hydrogen atom, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4. That there are 4 orbitals corresponding to this energy level, 2s, 2px, 2py and 2pz. ठीक है, समझ में आया टर्म? अच्छा, if I ask you
what is the degeneracy of the second excited state of hydrogen atom? तो अब क्या आंसर होगा? You again look back at the diagram. 9. है ना, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल था, ये फर्स्ट सेकेंड एनर्जी लेवल है, दैट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट विल बी द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, दैट इज द थर्ड एनर्जी लेवल, राइट? एंड इसके करस्पॉन्डिंग हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर यू एबल टू सी? There are 9 orbitals. So can you see that the answer would be 9? The degeneracy of the second excited state of hydrogen atom will be clear है ये? Degeneracy term समझ में आ रहा है? So, हाँ. so for degeneracy of a single electron atom, can we say that it is basically equal to the total number of subcells, so n square? Total number of orbitals. Sorry, my bad. Orbital. आप बोल सकते हो, Yeah, thank you. ठीक है? However, try and answer this question. ठीक है? एंड मैंने इसमें ऑलरेडी आपको हिंट दे दी है. What I have written over there is actually a hint that would make you solve the question easier, make the question much easier for you. If that was not present, then most of the students would not have been able to give the answer. Right, so the correct answer is 4. No, sorry, not 4. Correct answer is 3. कैसे? अब H माइनस जो है वो क्या हो गया? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया. ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अब आपको एनर्जी लेवल्स का आइडिया है, राइट? N+L रूल लगता है. तो फिर ये आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल हो गया जिसको अपन लोग ग्राउंड स्टेट बोलेंगे. देन ये नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल हो गया जिसको अपन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे. फिर उसका अगला हायर एनर्जी लेवल को सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे. एंड नाउ कैन यू सी दैट सेकंड एक्साइटेड स्टेट के करस्पॉन्डिंग कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है? समझ में आया ये?
Is this clear with So we everyone? can't do this one by using n plus l or something. तो n plus l रूल भी तो लगा के ये ड्रॉ हुआ है ना. Yes, got it. ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है ये n plus l रूल ड्रॉ लगा के तो ड्रॉ करा है. ठीक है, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है. ऑलराइट, सो आई थिंक आज के लिए यहाँ तक डिस्कशन काफ़ी रहेगा. ठीक है, वी हैव कम टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द क्लास ओनली. सो ये एनर्जी एसोसिएटेड विद रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑर्बिटल्स भी आपको समझ में आ गया है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक दो और रिजल्ट्स के बारे में बताऊंगा विच यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इन द क्वेश्चंस. ठीक है, तो फिर आप इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का भी होमवर्क स्टार्ट कर पाओगे. ठीक है. नाउ अपना डाउट डिस्कशन कब है अभी? Saturday. सैटरडे को. ठीक है, तो आप लोग अपने डाउट्स इकट्ठा कर लो. ठीक है. द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ओनली टिल व्हाट आई हैव टॉट टुडे. ठीक है, जो आपका टेस्ट रहेगा ना संडे को, उसमें द चैप्टर फ्रॉम स्टार्ट टिल व्हाट वी हैव लर्न टुडे यहाँ तक रहेगा. ठीक है. एंड प्रैक्टिस के लिए मैं आपके साथ में एक छोटा सा क्विज भी कर लूँगा ऑन सैटरडे इटसेल्फ. जब हम लोग डाउट डिस्कस कर रहे होंगे तो हम लोग एक क्विज देकर अंडरस्टैंड करेंगे हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन वगैरह कैसा चल रहा है एंड हाउ इज इट एज कम्पेयर टू द अदर क्लास एज इन द अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास. एंड फिर उसके बाद में इसका होमवर्क आप कंप्लीट करना. नेक्स्ट वीक में विल डिस्कस दैट होमवर्क एंड देन try to complete this chapter by next week. ठीक है. All right. Any other questions? Any doubts from your side? Based on what we have studied today? So I just had a weird question. So why are these numbers called quantum numbers? Because even in Bose model we use the concept of quantized energy, but here we call them quantum numbers. Well, जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये क्वांटम नंबर्स आते कहाँ से? It's not math. ठीक है, जो ये श्रोडिंगर इक्वेशन है और उसकी मैथ्स को जब सॉल्व करते हैं तब ये नंबर्स आते हैं. ठीक है. अभी जो नंबर्स आते हैं ना, ठीक है, दे एक्चुअली आर लाइक कोएफिशिएंट्स. जैसे आपने अभी मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हो आप. Yes, sir. तो ये ax² + bx + c = 0 में व्हाट आर a, b एंड c? So coefficients कोएफिशिएंट्स होते हैं ना, and c constant. है ना. तो वैसे ही ये जो वेव फंक्शन डेवलप होता है ना, ठीक है, ये अपने आप में एक इक्वेशन होती है. ठीक है, नॉट एज सिंपल एज दिस बट समथिंग मच मोर कॉम्प्लिकेटेड. उसमें ये कोएफिशिएंट्स अपीयर करते हैं, उनको क्वांटम नंबर्स कहते हैं. ठीक है. एंड द प्रॉब्लम और नॉट द प्रॉब्लम एक्चुअली द फीचर इज दैट ऐसा नहीं है कि ये कोएफिशिएंट्स की कुछ भी रैंडम वैल्यू होती है. जैसे आज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे हो तो उसमें a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल नंबर. Yes, sir. b की भी कुछ भी हो सकती है, c की भी कुछ भी हो सकती है. हाँ, sir. ठीक है. Now when you are solving this Schrodinger equation and you are looking for meaningful solutions, तो वो meaningful solutions में एक constraint आता है, एक information पता पड़ती है कि coefficients जो है वो random values नहीं हो सकती है. They are only certain allowed values that they can have, and that's why the word quantum got used with them. Okay, sir. Thank you, sir.
ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ नैन, हम लोग डिस्कस करेंगे ना. We are going to discuss the DPPs and the like booklet questions. I think DPPs should be priority. फिर Yes. booklet के question discuss कर लेंगे. So I was just asking that basically if you give any homework today, will that also be discussed on Saturday? नहीं, आज मैं आपको homework नहीं दूंगा. Okay, thank you. मुझे थोड़ा सा और पढ़ाना पड़ेगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, सो एज टू गिव यू क्वेश्चंस. अभी भी दे सकता हूँ बट देन वो लाइक एक बहुत छोटा सा ही पार्ट रहेगा. सो इट इज़ बेटर कि मैं थोड़ा सा और पढ़ा लूँ. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, द फोर्थ क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा है ना मैंने अभी, स्पिन क्वांटम नंबर, वो भी पढ़ा लेता हूँ एंड फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ. Yeah. ठीक है. ठीक है. हाँ नहीं हर्ष, आप like out of curiosity definitely you can go ahead and explore, but the thing is that it becomes a bit difficult, ठीक है, to you know wrap your head around the further topics that are there in this particular topic, in this particular chapter. But हाँ बिल्कुल out of curiosity पढ़ना चाहिए. In fact you can go ahead and see some more informative videos which are there on YouTube uploaded by people that make it easier for the audience to understand. ठीक है. जनरली बुक्स में या रिसर्च पेपर्स में लाइक द लैंग्वेज इजंट दैट इजी टू कॉम्प्रिहेंड एंड ग्रास्प, बट थैंकफुली ऑन यूट्यूब यू डू फाइंड सर्टेन इंटरेस्टिंग pieces which help you grasp some like concepts which are a bit better. हाँ right. ठीक है. All right, any other question? नहीं. ठीक है चलो. All right then, thank you guys, take care. I'll share these notes and recording. Bye bye.